ہم جا رہے ہیں بابو سر ٹاپ. تمام راستے میں ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے جو ایک چیز نوٹس کی ہے بہت امپورٹنٹ ہے، وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کو بالکل نہیں سنبھالتے. ایک تو یہ کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سڑکوں کے کنارے پھر رہے ہوتے ہیں، بے شک انجوائے کرنے کے لیے نکلے ہوتے ہیں لیکن انتہائی خطرناک ہے. پھر جتنی لیکس پہ میں گیا ہوں، ماؤں نے اپنے بچوں کو بالکل لاوارث چھوڑا ہوا ہے، وہ لیکس کے کناروں کے بہت قریب پھر رہے ہوتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گاڑیاں چلاتے ہوئے جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو نہ تو پیرنٹس بلکہ بالخصوص جو ڈرائیو کر رہا ہے اس کو شاید پتہ نہ چلتا ہو، لیکن والدہ صاحبہ، والدہ محترمہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کیسے اجازت دے دیتی ہیں کہ وہ گاڑی کی کھڑکی میں بیٹھ جائیں اور باہر لٹک رہے ہوں، اور اگر اچانک پھر حادثہ پیش آ جائے تو پھر ہم چیخو پکار بھی کرتے ہیں. غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، لاپرواہی بھی اپنی ہوتی ہے. تو خدا را ان چھوٹی چھوٹی اوچھی حرکتوں سے ڈیورنگ ڈرائیونگ پرہیز کیا کیجیے، اور ٹورسٹ حضرات جو ہے وہ اس پہ خاص توجہ رکھیں کہ بچوں کی حفاظت انتہائی ضروری ہے. بابو سر ٹاپ کا منظر یہ ہے، یا تو یہ بکر منڈی ہے اور یا یہ چیچو کی بلیاں ہیں. مطلب حیران ہوں میں کہ دیکھیں تو ابا تباہی ہے بھائی، ہر چیز کی تباہی. بابو سر ٹاپ نہیں رہا اب یہ پارٹی لواری بن گیا ہے. حال آپ دیکھ لیں کیا ہے. ایسے لگ رہا ہے یہ لوگ یہاں بکرا خریدنے آئے ہیں. بکر منڈی میں نے دیکھا تھا اس طرح سے دنیا جو ہے، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ڈرائیو کر رہا ہے، ہم نے راستہ دینا ہے نہیں، کوئی دیکھے بغیر ادھر ادھر سب اپنی اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم لوگ ایسے ہی چیونٹی کی طرح چل رہے ہیں، کیونکہ جو سڑکوں پہ پیدل چل رہے ہیں یا گاڑیوں پہ جا رہے ہیں ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے یہاں سے گزرنا ہے یا کسی نے اپنا سفر کمپلیٹ کرنا ہے. اور اس طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ عجیب سے یہ جنگلے لگا کے اور وہ سارا تماشا کر کے بابو سر کی خوبصورتی تو بیڑا گرک ہو گئی. اب یہاں پہ زپ لائن تو فلانی لائن تو ڈھمکانی لائن وہ بنا دی ہیں، جو کہ یہاں بالکل ضرورت نہیں تھی کسی بھی لائن کی. یہ ویسے ہی اتنا خوبصورت تھا، اس کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا. لیکن ہم بس عجیب قوم ہے ہم لوگ، ہم ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی تماشا چاہتے ہیں. نہ تو یہاں پر پارکنگ کا پراپر کوئی انتظام ہے اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ان کو گائیڈ لائن دینے والا بندہ کھڑا ہے. جس کا جدھر منہ آ رہا ہے گاڑی لگا رہا ہے، جس کا جدھر دل کر رہا ہے وہ گاڑی گھسا رہا ہے. مطلب عجیب تماشا بنا ہوا ہے کہ کوئی روڈ کے اوپر ہی گاڑی لگا کے چلا گیا پکوڑے کھانے کے لیے، کوئی روڈ کے اوپر ہی گاڑی لگا کے چلا گیا اپنی فیملی کو اتارنے کے لیے. تو یہ یہاں پر پورا کوئی انتظام ہونا چاہیے. جب آپ کو پتہ ہے کہ سیزن شروع ہوا ہے، اس کے بعد لوگ یہاں آئیں گے، انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ دیکھیں یہاں پر کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں جتنے بھی، ان کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. نہ تو کوئی یہاں انتظامیہ ہے اور نہ ہی کوئی یہاں پہ سلسلہ ہے، کوئی دیکھنے والا ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، بس اندھا دھند جو ہو رہا ہے وہ چل رہا ہے. یہ بابو سر پاس ہے، یہاں سے آپ نے کراس کر کے دوسری جگہ پہ جانا ہے. تو یہاں پر لوگوں کو اس طرح سے کھڑے ہونے کی یا دکانیں بنانے کی یا فوڈ اسٹریٹ بنانے کی یا ہوٹل کمرے بنانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. کس نے اجازت نہیں دی ہے اور کس نے یہ سارا انتظام کیا ہے؟ کس نے اجازت دے دی؟ کون پیسے کھا رہا ہے ان لوگوں سے لے کے یہ جو ڈھابے لگا کے اور ہوٹل بنا کے بیٹھے ہیں؟ یہ پاس ہے بھائی، کسی بھی پاس پہ پوری دنیا میں یہ تماشے نہیں ہوتے. یہ زپ لائن، یہ ہوٹل، یہ ڈھابے، یہ سب کچھ کہیں نہیں ہوتا. ہم تو عجیب دنیا سے انوکھی قوم ہے کہ جو پوری دنیا میں نہیں ہوتا وہ ہم نے کرنا ہوتا. پاس کو ہم نے جہاں سے ہم نے دوسرے ایریا میں ایک دوسری ٹیریٹری میں انٹر ہونا ہے، اس کو ہم نے پکنک سپاٹ بنا دیا. مطلب واٹ دا ہیل از دس؟ میں نے تو اس پہ پوری گفتگو کرنی ہے. خیر میں اس ویلاگ میں مخل نہیں ہونا چاہتا، لیکن آئی ایم ریئلی ڈسپوائنٹڈ. مطلب یہاں اتنی کوئی 50-60 کے قریب بسیں کھڑی ہیں
और सड़कों के ऊपर ही गाड़ियां खड़ी हैं जो बिल्कुल आपको रास्ता देने के लिए तैयार नहीं है, और जो उन गाड़ियों में से लोग उतरे हैं वो भी उन्हीं सड़क, एक तो सड़क है भाई, एक रोड है, वहाँ पर गाड़ी पार्क करके वहाँ पर ही लोग फिरेंगे तो दूसरे लोग कैसे गुजर सकते हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये किसने ये इजाज़त दी है, किसने पैसे खाए हैं इनसे, कौन अपनी जेबें भर रहा है जो इनको सहूलतें दे रहा है कि ये पास पे अपने ढाबे, जिप लाइन और ये सारे तमाशे जो हैं करें। तो हैरत है मुझे कि कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, बस एक तमाशा बना हुआ है। और ये बाबू सर रोड के जो ये ऊपर से नीचे आए हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ पर, गड्ढे हैं पड़े हुए, कि मैं ये सोच रही हूँ कि इस रोड को इतनी जल्दी ओपन करने की ज़रूरत भी क्या थी। पहले इसकी मुरम्मत तो कर लेते, उसके बाद ओपन कर देते। कितना टाइम लगना था, हफ्ता 10 दिन लगना था सिर्फ, लेकिन नहीं, वो खड्डे वैसे के वैसे हैं और बस माफिया बस खोल दिया रोड के किसी ना किसी तरीके से पैसे हमारी जेब में आ जाएं। जब इंसान के अंदर लालच पैदा हो जाता है ना, तो फिर वो कुछ नहीं देखता, और फिर कौमें भी तबाह हो जाती हैं, मुल्क भी तबाह हो जाती है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी आप सब लोगों से, जितने भी हर साल निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए, जो रेगुलर ट्रैवलर नहीं है, जो लोग सिर्फ फसली बटेरे, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए गाड़ी जो है वो एहतियात से चलाया करें। जब आपको आपकी लेन में रहना है, उसको क्रॉस करके दूसरी गाड़ी को क्रॉस मत करें, हादसे ऐसे ही होते हैं। और बीबियों से कहना चाहूँगी कि बाजियों, अपने खाने पीने, अपने मेकअप के अलावा अपने बच्चों का भी ख्याल रखा करें। आपके बच्चे कहाँ हैं ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई हादसा होता है तो फिर पूरे सोशल मीडिया पे तमाशा लग जाता है कि ओहो ये हो गया बेचारे के साथ, वो हो गया बेचारी के साथ। तो बेचारे हम पहले अपनी करतूतें ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, ताकि ये हादसे हों ही ना। हम इतना ओवरटेक करते हैं, अब वहां तक पूरी लाइन लगी हुई है, वो मुझे जलखड़ नजर आ रहा है, शायद वहां पूरी की पूरी कतार है, लेकिन जरा सी कोई स्पेस मिलती है जैसे ही, तो उसके अगले बंदे की कोशिश होती है कि मैं अगली गाड़ी को मारूं और टक्कर मार के निकल जाऊं। खैर है, कुछ नहीं होता। यहाँ मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रोड है, ठीक है, और साइडों पे बर्फ है, तकरीबन आधी रोड इस साइड पे है और आधी रोड इस साइड पे बर्फ ने घेरी हुई है। ये हम लोग यहाँ पर अपनी दुकानें भी चमका के बैठे हैं। ये कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि इंतज़ामिया की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ यहाँ पर ये सारा काम हो। सामने स्नोमैन लगाया हुआ है और जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो इस तरफ से 2 लाइनें बनी हुई हैं। अगर यहाँ से 2 लाइनें बन जाएंगी तो उधर वाले लोग इधर कैसे आएंगे। मतलब जहालत की इंतहा है। मैं ये देख रही हूँ कि दिन ब दिन हम लोग तरक्की कर रहे हैं, लोग बेहतर से बेहतर हो रहे हैं और हम मज़ीद जाहिल होते जा रहे हैं। अब देखें जी, हम लोग यहाँ हैं, इन्होंने ये तीसरी लाइन बनाने की कोशिश की कि ये इधर से आ जाएं। ये तो हमारी कौम का हाल है। अब अगर यहाँ पर इंतज़ामिया देख रही हो, यहाँ पर पुलिस वाले जो हैं वो गाड़ी में मौजूद हों, यहाँ पर बाइक पर जो हैं पुलिस वाले मौजूद हों, तो ये कम से कम आप देख रहे हैं 3-3, 4-4 लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और हम लोग 1 घंटे से यहाँ खड़े सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रक जहाँ खड़ा हुआ है उसके साथ लाइन लगी हुई है, उसके साथ एक और लाइन लगी है और चौथी लाइन जो है वो चल रही है। अगर आप अक्लमंद लोग हों तो आपको ये नहीं पता कि ये सिंगल रोड है, कि लोग जाने वाले हैं, दूसरे आने वाले हैं। अगर यहाँ पे 3 की लाइन लग जाएगी तो वो उस साइड से आने वाले जो हैं वो कैसे आएंगे, ये ट्रैफिक कैसे चलेगी। मतलब सारी रात जिनके साथ कोई छोटे से बच्चे हैं या जिनका कोई मसला है, कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी ने मेडिसिन खानी है, वो यहाँ पे फंस जाए, क्योंकि यहाँ पर माफिया भरपूर तरीके से पैसे खा रहा है और सब लोगों को खुला छोड़ा हुआ है, सबको आज़ाद किया हुआ है कि आपका जो दिल करे वो करो, बेशक भाड़ में जाओ। ये आप तमाशा देख रहे हैं, पिछले 4 घंटे से हम लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। अभी भी लुलु सर से बड़ी मुश्किल 3 घंटों में निकले और वो ऊपर तक ये लाइन लगी हुई है सिर्फ इसलिए कि यहाँ कोई इंतज़ामिया नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई इनको देखने वाला नहीं है। मतलब जहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, आपको पता है कि ईद के बाद लोग घरों से निकलते हैं, हर साल निकलते हैं,
तो आप लोगों की इतनी पुअर, सारी जितनी भी आप लोगों ने काम किया वो इतना फजूल है कि आप लोगों ने रमजान ईद से पहले, अभी ईद शुरू नहीं हुई थी तो 15 दिन पहले आप लोगों ने ये रोड खोल दिया। क्या 15 दिन में इस रोड की मरम्मत नहीं हो सकती थी? और जो यहाँ की केपी की पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस या दूसरी वाली पुलिस, उनको ये नहीं पता कि इस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है। आप देख रहे हैं कि सामने क्या हशर है। अब तक हम लोगों ने जो 4 घंटे हमने यहाँ ज़ाया किए हैं, अब तक हम पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते, लेकिन क्या है कि बस फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक में, क्योंकि हर बंदे को जल्दी है और हर बंदा एक की जगह 3-3, 4-4 लाइनें बना के बैठे हुए हैं। उनको है कि हम लोग 4 लाइनें बना लें, जो उधर से आने वाले हैं वो दरिया में कूद जाएंगे या उनके गाड़ियों के अंदर से पार निकलेंगे और वो उड़ जाएंगे। 3-3, 4-4 लाइनें जल रही हैं। ये इतनी गंदी और घटिया काम है जो हर साल घर से तमाशबीनी करने के लिए निकलती है, जिनको पूरा साल कुछ नहीं मिलता, जिनको पूरा साल कोई इंजॉयमेंट नहीं होती। वो कहीं ना कहीं से पैसे उधार मांग के 4 पैसे इकट्ठे करते हैं और फिर वो या तो किराए की गाड़ियां ले लेते हैं या शायद कोई अपने बहनोई की गाड़ी लेके तो निकल आते हैं। ये देख लें आप, ये यहाँ से तकरीबन बेसल से हम लोग अभी यहाँ से निकले हैं और इस साइड पे हम लोग आए हैं और ये देखें कि इन लोगों ये देख लें ज़रा आप कि ये है तरीक़ाकार। ये एक नहीं 4-4 लाइनें बनी हैं। अगर तमीज़ से और तहजीब से चला जाए, एक लाइन जाने की और एक आने की जो बनती है वो हो, तो ये तमाशा तो ना लगा हो कम से कम कि 4-4 घंटे ये लोग गाड़ी में इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन तमीज़ के साथ गाड़ी नहीं चला सकते। गाड़ी खरीद लेते हैं लेकिन गाड़ी चलाने की तमीज़ नहीं है कि गाड़ी चलानी कैसे है। और यही लोग जब बाहर जाते हैं तो ऐसे तीर की तरह सीधे होके वहाँ पे ये गाड़ियाँ चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पता होता है छितरौल होगी। यहाँ छितरौल वाला कोई नहीं है, यहाँ छितरौल की ज़रूरत है दरअसल, और कुछ नहीं है। रुके एक सेकंड रुक जाएं, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, ये एक रोड है ना, एक साइड पे गाड़ियाँ आएंगी, एक साइड पे जाएंगी। अगर 3-3, 4-4 लाइनें बन जाएंगी तो इधर से जाने वाले कहाँ जाएंगे? वो इनके गाड़ियों के पार निकल आएंगे या फिर ये कूद जाए नीचे दरिया में? इतनी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही? हम आपके लिए खातिर खड़े हैं, आपकी खिदमत के लिए खड़े हैं। आपका एक खर्च से मैं इधर आया हूँ। लाखों में लोग हैं, आप अकेले का क्या करें? चलो कोशिश तो मैं कर सकता हूँ। अभी आप थोड़ा मुझे टाइम दें, मैं रोड पे ना गाड़ियाँ बस ठीक है, फिर मैं निकाल दूँ। लगी हुई हैं, उधर से जो लोग आ रहे हैं कहाँ जाएंगे बेचारे? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं बाबूसर से बेसल तक पहुंची हूँ 4 घंटे में, और ट्रैफिक का कोई निज़ाम नहीं, वो तो मैं पहले भी आपको पहली रील में बता चुकी हूँ। बताना ये चाहती हूँ कि जो लोग यहाँ पर आके, जैसे ही बाबूसर खुलता है तो बाबूसर की मशीनें आके दिखाते हैं और बाबूसर को आके, जी बाबूसर खुल गया, नारान खुल गया, आ जाओ, भागो, दौड़ो, निकलो। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं, तो उन लोगों को पैसे दिए जाते हैं कि हमारी पब्लिसिटी करो। अदरवाइज ना तो नारान में कुछ देखने के लिए रहा है, ना कागान में कुछ देखने के लिए रहा है। ये दूसरा मरी बन चुका है। इतनी गंदगी, और लोग भी बदतमीज हो चुके हैं। कोई आपका लिहाज नहीं करता, बदतमीजी भी करते हैं। जैसे कि मरी के लोग करते थे, वैसे ही अब नारान के लोग भी करते हैं। तो जो लोग यहाँ पर आके मशीनों के सामने खड़े होकर बाबूसर के रोड खुलवाकर वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो मेरे भाई उनको पैसे दिए जाते हैं। मैं इसलिए बोलूंगी जब जहां कोई गलत होगा, क्योंकि मैं किसी से पैसे नहीं लेती और ना मुझे जरूरत है। जब गलत होगा तब बोलूंगी कि ये गलत हो रहा है, और यहाँ पर गलत हो रहा है। जब लाखों की तादाद में लोग आए हैं तो उनका क्यों अरेंजमेंट नहीं किया गया? क्यों नहीं यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी की गई? क्यों नहीं कहा गया कि बाबूसर के ऊपर जो आप लोगों ने इतना उद्यम मचाया हुआ है वो किस लिए है? और मैं स्पेशल कोई नारान में सैरो तफरी के लिए नहीं आई। मैं तो जाते हुए बिशाम से गई थी और आते हुए बाबूसर से क्रॉस कर रही हूँ और लाहौर जा रही हूँ। मुझे वहाँ फेरी मेडो पे ही कुछ लोगों ने कहा था, जी वहाँ तो मछली मंडी बनी हुई है, वहाँ आप कैसे जाएंगी? हम तो 7 से 8 घंटे में पहुंचे हैं। तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ लोग बात बढ़ा चढ़ा के करते हैं, तो ऐसे ही कह रहे हैं, लेकिन नहीं, उसने कम बोला था। जो मैंने देखा यहाँ पर मछली मंडी नहीं है, ये तो पता नहीं कोई और ही मंडी लग रही है मुझे, कि जहाँ कोई तरीका और सलीका ही नहीं है।
اس لیے یہ جو آپ لوگ آگے ڈرامہ کرتے ہیں نا، بابو سر کھل گیا، پہنچو پجو نسو نکلو، بابو سر کھل گیا، تو پلیز رک جاؤ، بس کر دو. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ایمانداری بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر ہر 2 کلومیٹر پر 3-4 پولیس والے کھڑے ہوتے جو ٹریفک کو ریگولیٹ کرتے. ٹھیک ہے، یہاں پر اگر کوئی وائلیشن کرتا، کوئی اوورٹیک کرتا تو اس کو فائن کیا جاتا، اس کو بلکہ فائن نہ کیا جاتا، اس کی گاڑی بند کی جاتی 7 دن کے لیے، اور اس کو کہا جاتا کہ اب تم پیدل جاؤ، بس پہ جاؤ، یا جیسے تمہارا دل چاہتا ہے ویسے جاؤ. یہ قانون ہے ہمارا کہ تم اس طرح سے لوگوں کو اکسا رہے ہو، لوگوں کے لیے حادثے کا باعث بن رہے ہو، اس لیے تم نے یہ کام کیا ہے، تمہاری گاڑی بند کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا بگ فیلئر ہے چیف سیکرٹری، ہوم سیکرٹری اور انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا.